Hello students, hope you might have understood why methods and functions are needed and how to write a Java program using these methods and functions. So let's start with the next topics of methods and functions with this part. Method definition. Method definition is made up from the declaration of the method and the body of the method. That means किसी भी method की definition उसके declaration part और body part दोनों से मिलकर बना होता है. Method declaration is the first line of the method. किसी भी method की first line को method का declaration बोलते हैं और method के declaration के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो सब मिलकर मेथड की बॉडी बनाते हैं. और जब मेथड डिक्लेरेशन और मेथड बॉडी को साथ में कॉल करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो दैट मेक्स द डेफिनेशन ऑफ द मेथड. जस्ट सी द सिंटेक्स ऑफ मेथड डेफिनेशन. मेथड डेफिनेशन के सिंटेक्स में फर्स्ट लाइन जो है दैट इज द मेथड्स डिक्लेरेशन, दैट इज द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेथड. और मेथड के डिक्लेरेशन के बाद जो भी कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है वो सब मिलकर मेथड की बॉडी बनाते हैं और ये पूरा कंबाइन होकर मेथड की डेफिनेशन कहलाता है. सो जस्ट coming back to the method declaration syntax, first word is modifier. मॉडिफायर एक्सेस मॉडिफायर भी हो सकता है या नॉन एक्सेस मॉडिफायर, और समटाइम्स दोनों एक्सेस and non-access modifiers, both of them are used in the methods declaration part according to the requirements. Next to modifier is return type. return type के बाद method का name लिखना होता है which is an identifier, and after writing the name of the method bracket में parameters को specify करना पड़ता है if we are using some parameters for this function. बट अगर हम कोई पैरामीटर्स यूज नहीं कर रहे हैं तो वी विल सिंपली यूज द एम्प्टी ब्रैकेट्स ओवर हियर. Let's understand these two terms, methods prototype and the signature of the method. A method prototype is the first line of the function definition that tells the program about the type of value returned by the method and the number and type of arguments. किसी भी method की first line is known as the prototype of the method. We have already discussed किसी भी method की first line को method declaration बोला जाता है और उसी method declaration को method prototype भी बोला जाता है. And this method prototype, this is responsible for telling the compiler कि method किस type की value return करने वाला है और क्या मेथड कुछ आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहा है, और अगर मेथड कुछ आर्ग्यूमेंट्स यूज करने वाला है तो उनका टाइप क्या है. ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मेथड के प्रोटोटाइप से. कमिंग टू द नेक्स्ट term, that is the signature of the method. The signature is basically the number and type of arguments. Just try to understand it with the example. We have a methods prototype public static integer add integer a comma integer b. मैंने इसे अभी methods prototype क्यों बोला? Because this is the first line of the method add, इसीलिए this will be called as the prototype of the method. This is the first point. Now this prototype tells the compiler कि ये method add integer type की value return करने वाला है और this method add is using two arguments और दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है. तो ये पूरी इंफॉर्मेशन कंपाइलर को किससे मिल रही है? प्रोटोटाइप से. और वी कैन से द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेथड that is also known as the methods declaration. Then the next term, method signature. Right now we have discussed this. मेथड सिग्नेचर इज नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. इस प्रोटोटाइप में पब्लिक स्टैटिक इंटीजर ऐड इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, इसमें आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं?
ए और बी जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो नंबर एंड टाइप, नंबर मीन्स हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स आर देयर इन नंबर, देयर आर 2 आर्ग्यूमेंट्स इन नंबर, और उनका डेटा टाइप क्या है, दोनों के लिए डेटा टाइप इंटीजर है। तो ये दोनों चीजें मिलकर कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं और उनका डेटा टाइप क्या है, ये दोनों मिलकर दे आर combinedly called as the signature of the method. Let's understand method definition in a function with the example given here. यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है public static integer add integer a comma integer b and with some arguments in the body. तो इसमें मेथड डेफिनेशन की बारे में जब हम बात करेंगे तो मेथड डेफिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेथड डिक्लेरेशन जिसको प्रोटोटाइप भी बोलते हैं और मेथड की बॉडी। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेथड डिक्लेरेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेथड। तो यहाँ पर मेथड की फर्स्ट लाइन है पब्लिक स्टैटिक इंटीजर ऐड इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। तो इस लाइन को बोलेंगे मेथड डिक्लेरेशन और मेथड्स प्रोटोटाइप। इसके बाद जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है इन सब को मिलाकर बनती है मेथड की बॉडी, और ये दोनों मिलाकर मेथड डिक्लेरेशन और मेथड बॉडी इन दोनों को मिलाकर बनता है मेथड की डेफिनेशन। So let's understand the method declaration according to the syntax we have discussed previously. First word in the methods declaration is public जो कि एक modifier है। Static is also a modifier, इसमें public access modifier है और static non-access modifier. We have already discussed this in the previous slide that in the method declaration access modifier भी यूज कर सकते हैं या फिर non access modifier या फिर दोनों यूज कर सकते हैं access modifier and non access modifier according to the requirements. तो इस method declaration में access modifier और non access modifier दोनों का यूज हुआ है। After modifier a word int is written over there. This is the return type of the method. That means method add एक integer type की value return करने वाला है। After return type name of the method should be there and the name of the method is add. After writing the name of the method brackets में we have to specify the parameters if we are using any parameters. यहाँ पर bracket में दो पैरामीटर्स स्पेसिफाई कर रखे हैं इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, दैट मीन्स a और b दोनों क्या हैं पैरामीटर्स। देन इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड अ स्टेटमेंट इज रिटन, द लास्ट स्टेटमेंट एज रिटर्न c, दैट मीन्स ये रिटर्न c रिटर्निंग वैल्यू बता रहा है। दैट मीन्स this function add is going to return the value of c variable. So this return is returning a value here. So let's start with each part of the methods declaration. First part of method declaration was modifiers. Modifiers दो टाइप के होते हैं, access modifiers and non-access modifiers. Access modifiers actually 3 types के ही होते हैं, public, private and protected. पर अगर इन तीनों में से कोई सा भी access modifier यूज किया हुआ नहीं है तो उस फंक्शन को डिफॉल्ट कंसिडर करा जाता है। दैट मीन्स उस फंक्शन के लिए एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट कंसिडर होता है। दैट इज व्हाई डिफॉल्ट इज टेकन एज द फोर्थ वन। नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स हैं फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, ट्रांजिएंट, वॉलेटाइल and synchronized. In some of the methods declaration, access modifiers are used and in others non-access modifiers are used. But sometimes according to the requirements access modifier and non-access modifier दोनों ही यूज होते हैं, जैसा हमने अभी पहले एग्जाम्पल में देखा था। अगर एक्सेस मॉडिफायर दैट मीन्स पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तीनों में से कुछ भी यूज नहीं हुआ है मेथड के डिक्लेरेशन में
तो it is considered as default one. Okay, non access modifiers हम चाहें तो यूज कर सकते हैं. If we want, we can simply skip them. Access specifiers or modifiers. Access specifiers or modifiers are the keywords in object-oriented languages that set the accessibility of classes, methods, and other members. That means access modifiers क्लासेस मेथड्स या दूसरे मेंबर्स के साथ यूज करके उनकी एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी मतलब कि उन क्लासेस मेथड्स या अदर मेंबर्स को और कौन कौन यूज कर सकता है और किन क्लासेस को परमिशन है उस क्लास को यूज करने की या उस पर्टिकुलर मेथड को यूज करने की. ये डिफाइन होती है एक्सेस मॉडिफायर्स से. Access modifiers are generally of three types: public, private, protected, but the fourth one is considered as default जब public, private, protected तीनों में से कोई सा भी यूज नहीं होता है. तो जब हम बात कर रहे हैं that access modifiers are going to give the accessibility permissions to the methods, classes or other members, तो we should start understanding in detail कि किस modifier के साथ क्या permissions मिलती हैं. So starting with the first modifier public, अगर किसी भी method को access modifier public दे रखा है तो वो method सेम पैकेज की सेम क्लास में भी यूज हो सकता है. सेम पैकेज की दूसरी क्लासेस भी उसे यूज कर सकती हैं. आउटसाइड द पैकेज मीन्स किसी और पैकेज की सब क्लासेस भी यूज कर सकती हैं और किसी और पैकेज की दूसरी सारी क्लासेस जो कि सब क्लासेस नहीं है वो भी उस मेथड को यूज कर सकती हैं जिसके साथ मॉडिफायर पब्लिक लगा हुआ है. दैट मीन्स पब्लिक मॉडिफायर वाले मेथड्स को सभी एक्सेस कर सकते हैं विद इन द सेम पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्राइवेट. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वाले फंक्शंस को सेम पैकेज में सेम क्लास यूज कर सकती है. सेम पैकेज की दूसरी क्लासेस यूज नहीं कर सकती हैं. आउटसाइड द पैकेज तो बिल्कुल यूज ही नहीं हो सकता. दैट मीन्स सबसे स्ट्रिक्ट एक्सेसिबिलिटी परमिशंस जो होती हैं वो प्राइवेट के साथ होती हैं क्योंकि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स वाले फंक्शंस को सिर्फ उसी क्लास में यूज कर सकते हैं. उस क्लास के बाहर उसे कहीं भी नहीं यूज कर सकते हैं. Not even by the classes of the same package. Clear? Coming to the third one, protected. अगर किसी फंक्शन के साथ एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड यूज किया हुआ है तो उस फंक्शन को उसी क्लास में यूज कर सकते हैं. सेम पैकेज की दूसरी क्लासेस उसे यूज कर सकती हैं. आउटसाइड द पैकेज सिर्फ उस क्लास की सब क्लासेस उसे यूज कर सकती हैं पर आउटसाइड द पैकेज जो क्लासेस उसकी सब क्लासेस नहीं है वो उसे यूज नहीं कर सकती हैं. दैट मीन्स प्रोटेक्टेड लाइज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट. प्रोटेक्टेड न तो बहुत ज़्यादा लीनियंट है न बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन गिविंग द परमिशंस. बट इफ व्हाट इफ अगर इनमें से कोई सा भी एक्सेस स्पेसिफायर किसी मेथड के साथ यूज नहीं कर रखा है. दैट मीन्स अगर मेथड की फर्स्ट वर्ड में न तो पब्लिक है न प्राइवेट है न प्रोटेक्टेड है तो फिर कंपाइलर उसे कंसिडर करता है डिफॉल्ट. और डिफॉल्ट के साथ क्या परमिशंस मिली हुई हैं जस्ट चेक. डिफॉल्ट के साथ जो भी फंक्शन डिफॉल्ट है वो सेम क्लास में यूज हो सकता है. सेम पैकेज की बाकी क्लासेस भी उसे यूज कर सकती हैं पर आउटसाइड द पैकेज उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता है. नॉट इवन द सब क्लासेस. सो नाउ इट माइट बी क्लियर टू यू. पब्लिक is the least restrictive and private is the most restrictive among these all. So understanding the accessibility of all the access modifiers with the help of a diagram. When moving from public to
private in this diagram, it becomes more restrictive. That means public is the least restrictive here. Protected is somewhat. Default is next to protected, and then the private is the most restrictive. And when coming down from private to public, that means private से public तक जब नीचे की तरफ आते हैं तो restrictions कम होती जाती हैं. That means प्राइवेट सबसे रिस्ट्रिक्टिव था, प्राइवेट से थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस कम हुई, तो वी आर इन द बॉक्स ऑफ डिफॉल्ट. डिफॉल्ट की रेस्ट्रिक्शंस कम होंगी तो वी आर इन द पार्ट ऑफ प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड की और रेस्ट्रिक्शंस कम कर देंगे, दैट मीन्स द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव वन पब्लिक. So let's understand it with the example. We have already existing class A, और हमने दो नई क्लासेस बनाई हैं, क्लास B and class C, which are the subclasses of class A shown by this figure here. Okay. अब हमारे पास दो पैकेजेस हैं, हर पैकेज में कुछ डिफरेंट क्लासेस हैं. So this is the first package जिसमें क्लास A है. क्लास A में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर्स जो अभी हमने डिस्कस करे थे विद देयर रूल्स. तो जो रूल्स एक्सेस मॉडिफायर्स के फंक्शंस के लिए यूज होते हैं, सेम वही रूल्स वेरिएबल्स के लिए, मेंबर मेथड्स के लिए या फिर अदर मेंबर्स के लिए भी यूज होंगे. क्लियर? देन वी हैव अनदर क्लास B. एक और क्लास B है इसी सेम पैकेज में. Because we have seen from the figure given in the example, class B is the subclass of class A. That means it is shown with the arrow. Arrow से show करेंगे कि class B class A की subclass है. Then एक और class है इसी package में, class C. But this class C is not the subclass of class A. This is the first package. We have one more package. एक और package है हमारे पास, उसमें है class D. Then we have class E, because from the relationship we can say class E is also the subclass of class A. तो यहाँ पर भी एक एरो से शो करेंगे कि क्लास E जो दूसरे पैकेज में है वो भी क्लास A की सब क्लास है. Then we have one more class, class F, in another package. Now I hope the scenario might be clear to you. The relationship is given. क्लास A बेस क्लास है, B and E are the subclasses given by the figure. We do have two packages. फर्स्ट पैकेज में क्लास A है, क्लास B है और क्लास C है. सेकेंड पैकेज में वी हैव क्लास D, क्लास E एंड क्लास F, और इसमें से क्लास B और क्लास E क्लास A की सब क्लासेस हैं. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें देखना है कि क्लास A के कौन कौन से वेरिएबल्स I, J, K और L में से दूसरी क्लास में एक्सेसिबल हैं अकॉर्डिंग टू द accessibility permissions given to these variables by their access modifiers. क्योंकि I, J, K और L के साथ में कुछ access modifiers हैं, तो ये access modifiers क्या परमिशंस देते हैं इन वेरिएबल्स को सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन अदर क्लासेस. वी आर गोइंग टू सी दैट. सबसे पहले हम बात करेंगे अगर क्लास A की, तो क्लास A कैन एक्सेस ऑल द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन इट्स बॉडी. I, J, K, L चारों को क्लास A एक्सेस कर सकती है, क्योंकि कोई सा भी अगर एक्सेस मॉडिफायर यूज करा हुआ है तो ऑल द एक्सेस मॉडिफायर्स गिव द परमिशन to be used in the same class. Clear? Now coming to next class, class B. Class B can access I, K and L. Class B cannot access variable J. क्यों नहीं कर सकता है और क्यों I, K और L को access कर सकता है? Just understand it. Just see the declaration part of class A for variables. Declaration part में लिखा हुआ है integer I वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर रखा है विदाउट एनी एक्सेस मॉडिफायर. अगर उसका कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है
पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में से इसका मतलब कि उसका मॉडिफायर हो जाएगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के लिए एक्सेस परमिशन थी दैट द members of the default access modifiers can be used by all the classes of the same package but not outside the package. उसी पैकेज की सारी क्लासेस उसे यूज कर सकती हैं। क्योंकि क्लास बी सेम पैकेज में रिसाइड करती है इसीलिए वेरिएबल आई को एक्सेस कर लेगी। कमिंग टू नेक्स्ट वेरिएबल, वेरिएबल जे इज डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। प्राइवेट वाला क्लास बी एक्सेस नहीं कर सकती है क्योंकि प्राइवेट वाले सिर्फ अपनी ही क्लास में यूज होते हैं। दैट मीन्स प्राइवेट वेरिएबल j is accessible only by class A, not by any other class. Clear? थर्ड वन है प्रोटेक्टेड, डबल के, दैट मीन्स के वेरिएबल को एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड से डिक्लेयर करा है। दैट मीन्स प्रोटेक्टेड gives the access rights to be used by all the classes of the same package but only by the subclasses of the other package. तो अभी class B same package में reside कर रहा है, protected can be used by all the classes of the same package, तो class B K को access कर सकता है। पब्लिक को सारी क्लासेस विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज एक्सेस कर सकती हैं, सो L is accessible here. Only J, which is a private data member, is not accessible. Okay, coming to class C can access I, K and L same but not variable J. सेम वही सारे केसेस हैं। आई डिफॉल्ट वाला है जो सेम पैकेज में सारी क्लासेस यूज कर सकती हैं। जे प्राइवेट है, जे इज यूज्ड ओनली इन द क्लास इन विच इट इज डिफाइंड, इसीलिए क्लास सी जे को यूज नहीं कर सकती है। के वेरिएबल प्रोटेक्टेड है, दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड बाय ऑल द क्लासेस ऑफ द सेम पैकेज बट ओनली बाय द सब क्लासेस ऑफ द अदर पैकेज। तो अभी अदर पैकेज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वी डू हैव अ क्लास सी इन द सेम पैकेज, दैट मीन्स के इज एक्सेसिबल, और एल तो पब्लिक है तो सभी उसे यूज कर सकते हैं। आई होप till here it might be clear to you. Coming to class D, class D can access only variable L. चलिए अब देखते हैं कि क्लास D सिर्फ L को एक्सेस क्यों कर सकती है। I वेरिएबल था डिफॉल्ट which is accessible by all the classes of the same package but not outside the package. क्योंकि क्लास D दूसरे पैकेज में रिसाइड करती है इसलिए क्लास D वेरिएबल I को एक्सेस नहीं कर सकती है। J को तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है एक्सेप्ट क्लास A। के वेरिएबल इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड के लिए रूल होता है इट कैन बी used by all the classes of the same package but only by the sub classes of the other package. तो क्लास D दूसरे पैकेज में रिसाइड करती है पर क्योंकि ये सब क्लास नहीं है इसीलिए क्लास D के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती है। दैट मीन्स क्लास D सिर्फ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर वाले वेरिएबल को ही एक्सेस करेगी, दैट इज वेरिएबल L. कमिंग टू क्लास E, now see I is not accessible by class D, J is also not accessible and K is not accessible. Coming to class E, क्लास E में K, L दोनों एक्सेसिबल हैं। अभी हमने पढ़ा था L इसलिए एक्सेसिबल है क्योंकि वो पब्लिक है, K इसलिए एक्सेसिबल है क्योंकि प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड वाले सारे मेंबर्स विद इन द पैकेज कैन बी यूज्ड बाय ऑल और आउटसाइड द पैकेज सिर्फ उसे सब क्लासेस यूज कर सकती हैं। तो क्लास E रिसाइड करती है दूसरे पैकेज में पर क्योंकि क्लास E क्लास A की सब क्लास है इसीलिए प्रोटेक्टेड वाले मेंबर्स को क्लास E एक्सेस कर सकती है। क्लास E किस किस को एक्सेस नहीं कर सकती है, I जो कि डिफॉल्ट है और J विच इज द प्राइवेट वन। कमिंग टू क्लास F कैन ऑल्सो एक्सेस वेरिएबल L क्योंकि डिफॉल्ट वाले आउटसाइड द पैकेज यूज नहीं होते हैं। प्रोटेक्टेड वालों को आउटसाइड द पैकेज सिर्फ सब क्लासेस यूज कर सकती हैं, क्लास F सब क्लास नहीं है। प्राइवेट वाले क्लास के बाहर यूज होते ही नहीं है, दैट मीन्स क्लास F कैन एक्सेस ओनली द पब्लिक मेंबर्स। नाउ आई होप the concept of public private protected might be clear to you.
Now that was all about access modifiers. Now coming to non access modifier, हमने पढ़ा था एक non access modifier होता है static. So today we will discuss about static and non static methods. Static methods are created with keyword static in their prototype. अगर किसी भी method के prototype में static word keyword use होता है, then that method is considered as static method. Just see the example. Public is the access modifier, static is non-access modifier. और जैसे ही प्रोटोटाइप में static word यूज हुआ, that means जो भी मेथड इस प्रोटोटाइप्स के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं, that method will be declared as static method. The rest of the syntax will be same as we have discussed earlier. After static, return type, method name and parameters. Then coming to non-static method, the non-static methods are created by absence of keyword static in the method prototype. अगर method के prototype में static keyword नहीं है, तो by default compiler उस method को non-static method या फिर instance method consider कर लेता है. Just see the example. The prototype is given here. Public is the access modifier, पर public के बाद static word नहीं है. That means इस function को compiler will consider it as non-static method or instance method. The rest of the syntax will be the same as we have discussed: public, return type, method name and then parameters. देन हाउ टू एक्सेस दीज मेथड्स. अब क्योंकि मेथड्स को हमने बोल दिया कि मेथड्स स्टैटिक भी हो सकते हैं या नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं, तो इनको एक्सेस करने का या कॉल करने के तरीके भी अलग अलग होंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टैटिक मेथड्स को कैसे एक्सेस करते हैं और इंस्टेंस मेथड्स और वी कैन से नॉन स्टैटिक मेथड्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं. इफ इट इज a static method, it is accessed with the name of the method only inside the same class. That means अगर किसी method को static method declare कर दिया है और हमें हमें उस मेथड को सेम क्लास में एक्सेस करना है या कॉल करना है, तो हमें डायरेक्ट मेथड नेम लिखने की ज़रूरत है, एम्प्टी ब्रैकेट एंड अ सेमीकोलन. इससे वो मेथड एक्सेस हो जाएगा या कॉल हो जाएगा. पर अगर हमें इस स्टैटिक मेथड को क्लास के बाहर किसी और क्लास के थ्रू एक्सेस करना है या किसी और प्रोग्राम में कॉल करना है, तो वी हैव टू राइट द सिंटेक्स क्लास नेम डॉट मेथड नेम. क्लास नेम मतलब उस मेथड की क्लास का नाम जिसमें वो स्टैटिक मेथड डिसाइड कर रहा है. क्लास नेम dot is used and then the name of the static method which is to be called. So this is the syntax for calling the method from outside the class. Coming to instance method, इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. जिस क्लास में वो मेथड है उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. एंड इस मेथड नॉन स्टैटिक मेथड या इंस्टेंस मेथड को हम सेम क्लास से या किसी और क्लास से एक्सेस करने के लिए वी विल राइट द सिंटेक्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम. So just understand it with the program here. We have a program here. Write a program to find minimum and maximum of two numbers. Okay. Now starting with class P2. P2 is the name of the class. First method is minimum, in which the declaration part or the prototype is public void minimum integer a comma integer b. First word public is access modifier, void is return type, minimum is the name of the method and two parameters are there. Then integer c equal to math dot min a comma b. That means using the min function of math class a और b दोनों variables का minimum find out हो जाएगा and that will be stored in variable
C, and after this the answer, that is the value of C, is printed as the minimum value. I hope it might be clear to you. Now coming to the next method, we have public static void maximum integer x comma integer y. Now just compare the prototype of both these functions. फर्स्ट फंक्शन मिनिमम में स्टैटिक वर्ड नहीं यूज हुआ था, इसका मतलब मिनिमम फंक्शन नॉन स्टैटिक फंक्शन था, और वी कैन से मिनिमम फंक्शन इंस्टेंस फंक्शन था। पर मैक्सिमम फंक्शन के प्रोटोटाइप में स्टैटिक वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स मैक्सिमम फंक्शन स्टैटिक फंक्शन है। अदरवाइज द प्रोटोटाइप इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। सेम वे जैसे हमने मिनिमम कैलकुलेट किया था, फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से मैथ क्लास के मैक्स फंक्शन को यूज करते हुए मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे, एंड द आंसर इज स्टोर्ड इन वेरिएबल z, and then maximum value is printed. Now the actual thing is to understand is how to access this minimum and maximum function, क्योंकि मिनिमम फंक्शन तो इंस्टेंस फंक्शन है और मैक्सिमम फंक्शन स्टैटिक फंक्शन है। तो इन्हें कॉल करने के लिए या एक्सेस करने के लिए फ्रॉम द मेन मेथड व्हाट विल वी राइट? We will write the main method. First of all, we will create the object of the class. Class name, object name equal to new class name. Here we have the class name as P2, इसीलिए लिखेंगे P2. P22 is the name of the object which we have selected, equal to new P2. तो इस स्टेटमेंट से क्लास P2 का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसका नाम होगा P22। ओके, अब क्योंकि मिनिमम फंक्शन हमारा जो था वो था नॉन स्टैटिक फंक्शन, एंड जस्ट रिकॉल नॉन स्टैटिक फंक्शंस को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है। वी हैव टू राइट ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो इसीलिए हमने लिखा है p22 डॉट मिनिमम ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। तो जैसे ही हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम p22 डॉट फंक्शन नेम मिनिमम, तो मिनिमम फंक्शन विल बी called with two values in their arguments. Okay, now coming to the next statement of main method. मेन मेथड के नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिर्फ मैक्सिमम, दैट मीन्स सिर्फ मेथड का नाम लिखा हुआ है जिसको हमें कॉल करना है। नाउ जस्ट सी, जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट कंपाइलर रीड करेगा तो कंपाइलर विल कॉल द मैक्सिमम फंक्शन, ओके, विथ टू आर्ग्यूमेंट्स। क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन स्टैटिक फंक्शन था। नाउ जस्ट रिकॉल स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस कैसे करते हैं। अगर स्टैटिक फंक्शन को सेम क्लास में एक्सेस करना है तो विदाउट यूजिंग एनी क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम इट इज एक्सेसिबल। सिर्फ मेथड का नाम लिखना है, सो वी हैव डन द सेम, सिर्फ मेथड का नाम लिखा है मैक्सिमम एंड कॉल्ड द मैक्सिमम फंक्शन। पर अगर यही मैक्सिमम फंक्शन किसी और क्लास से या किसी और प्रोग्राम से एक्सेस करना होता तो हमें लिखना पड़ता क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम। क्लास नेम है P2, तो हमें लिखना पड़ता P2 डॉट मैक्सिमम। ये काम कब करते हैं हम? जब हमें मैक्सिमम फंक्शन को कॉल करना होता किसी और क्लास से। होप this might be clear to you how to call static and non-static functions. With this, two parts of the method declaration, first part जो था access modifier and non-access modifiers might be clear to you. तो कुछ functions में हम access modifier use करते हैं, that is either public, private, protected और default। कुछ functions में non-access specifier use करते हैं like static, और कुछ functions में दोनों use करते हैं। क्लियर? तो एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर दोनों के कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गए होंगे। वी विल बी बैक with the remaining parts of the method declaration in our next video. Thank you for watching this video. Like it, share it and subscribe it.